Good evening, everyone, and welcome for our concluding gala for 17th Annual Global Health Summit of API, American Association of Physicians of Indian Origin. At this moment, I'm actually very thrilled and excited to invite our guest of honor, Dilip Bhai Sanghani sir, on a stage. Dilip Bhai Sanghani has done more good work than many other people in our country. He is the chairman of Indian Farmers Fertilizer Corporation. He is the chairman of National Cooperative Union of India. He is the chairman of Gujarat Cooperative Marketing Federation. He is the chairman of Agriculture and Cooperative Network for the Development of Agriculture Cooperative in Asia and the Pacific. He is also chairman of National Institute for Rural Banking. He is an member of ex-parliament and ex-minister of agriculture. It is my honor and welcome Dilip Bhai Sanghani. I'm going to ask our President Anjana Samadar to welcome him. Thank you everyone for coming to this event on the ultimate day of our Global Health Summit. And it's wonderful to see all the attendance today. And I would like to welcome Mr. Dilip Bhai Sanghani, who has honored us by coming today on this ultimate day of our Global Health Summit. And I would like to welcome him and also request him to hand over some awards to some of the winners of our poster presentations and some other events. So thank you, Dilip Bhai Sanghani, for being here. Thank you. I also would like to invite our Chair BOT, Dr. Lokesh Sadara, and also Dr. Srinivas. Please come on a dais. I want to welcome Sir with the shawl. I would like to request Dilip Bhai to say a few sentences. I would like to speak in Hindi because we are now in Bharat. भारत के निवासी अमेरिका में सेवा करते हैं, लेकिन एक साल यहाँ ग्लोबल हेल्थ केयर सर्विस के लिए समिट जो करते हैं, राष्ट्र प्रेम क्या है वो आप सबका यहाँ समिट करने में दिखाई देता है। तो आप राष्ट्र प्रेमी तो है, लेकिन समाज में अति आधुनिक संसाधन के माध्यम से आरोग्य प्रस्त सेवा देना, उनके लिए मार्गदर्शन करना, वो प्राथमिक जरूरियात को आपने प्राधान्य दिया है। इसलिए मैं पूरा आपके डॉक्टर्स यूनियन को वंदन करता हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तभी भी कहते थे कितनी भी सुविधा, स्ट्रक्चर, समृद्धि, सलामती हो, जो आरोग्य ठीक नहीं होगा
तो कुछ काम में नहीं है। और इसी तरह आज देश में उन्होंने गरीब से गरीब जिनके पास कोई आय नहीं है, वो समृद्ध से समृद्ध लोग आरोग्य की सेवा ले पाए। इनके लिए 10 लाख रुपये तक आयुष्मान भारत अलग अलग स्कीम करके सबको चिंता न रहे, इस तरह की व्यवस्था जो की है। श्रीनिवास साहब देख रहे हैं यहाँ पूरा एम्स, कहीं भी देश में कोई दिक्कत है तो उनकी तरफ नज़र जाती है। उनके सेवा भाव और आप सब जो सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं एक भारत के नागरिक के नाते आप सबका खूब आभारी हूँ। आपका वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ के राष्ट्र प्रेम और मानव सेवा का आप काम कर रहे हैं, इसलिए सबको वंदन। Thank you, sir. It was so inspiring, and thank you again for gracing us for this concluding gala. I would like to request our Global Health co-chair Indrapal Chabra to here. I saw him earlier here. I don't see him again. We're going to give few awards at this time, and I request our President Anjana Samadar to come and announce them. Hello everyone once again. Just an announcement that, during COVID times, we lost several physicians, and one of them was our past president, Dr. Ajay Loda, and several other leaders of API we lost to COVID. To honor them, we had decided to give an award for academic excellence to a student every year. So we would like to invite Dr. Srinivas on stage and Dr. Lokesh Adara, if you don't mind coming on stage too. So you have the check. Yeah. On behalf of API, we would like to pledge $1,000 to a student with exceptional academic excellence every year. And the first check we would like to hand over to Dr. Srinivas on behalf of API for all the lives which were lost during COVID times. Earlier during the press conference, I had said to most medias in India that the good time of AIIMS has started. The not good, golden time of AIIMS has started with Dr. Srinivas coming to the AIIMS. It is going to be not just the premium institute of India, but it is going to become premium medical institute of the world. So we want to congratulate and welcome Dr. Srinivas for his glorious work. I met personally Dr. Srinivas sir 3 months ago, and also I met this week. One thing is, I think he may be changing the mission. I'm requesting AIIMS is not for their own in the walls. AIIMS is for the whole India. That is his mission. So I'm requesting him. We from a small towns look AIIMS as Delhi as our guard to education and health or all the policies. So the word he came saying AIIMS is for India. So that's we really thank, and I invite Dr. Srinivas sir give a speech. Thank you. So if I may add one more thing, there's another thing that happened earlier today. There was a MOU signed between API and All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for a 5-year collaboration for academics, for students exchange, as well as for research. And for that, we would like to thank Dr. Srinivas. Actually, this is for the Institution of All India Institute of Medical Sciences, and since he's the director, I would like to hand you this little memento.
Good evening, everyone. Now I'd like to announce the results of the poster presentation competition. First, we will be announcing the results of research poster presentation and then the case presentation. So I would like to invite Anjana ma'am for facilitating the winners. So the first position goes to Dr. Mimansa Jindal for 50,000 rupees. This is a torn tracks prop. Now the second prize goes to Shubdeep Mandal for 15,000 rupees. And the third prize goes to Snehil Chabra of 10,000 rupees. Now coming to the case presentation awards, the first prize goes to Assis G. Singh of 25,000 rupees. Yeah, please come. Congratulations. The second prize goes to Sandeep Kumar Kundi of 15,000 rupees. This is a torn. The third prize goes to Pritika KB of 10,000 rupees. Yeah. Thank you all presenters for presenting in the competition. I would like to give the mic to Dr. Indrapal. So you might have, all of you who attended the events for the last couple of days, you might have heard murmurs about all the hard work that was done by the organizers for the past many months. I got involved a little bit later, but then the talks about this were going on for the last almost a year, right, Shubham? Almost a year. So we would like to recognize those folks who worked so hard, burned beyond the midnight oil in putting this all together. And to acknowledge the hard work that was done, first I would like to invite Dr. Mani Srinivasan on the stage. Do I see him? He's probably cracking a joke somewhere, right? Okay. So yeah, I know, I just saw him, yeah. So while we're waiting. Okay. Yeah. All of this, none of this would have been possible without the support of physicians from Delhi. And I would like to invite the most smiling face, the person who never phases, Dr. Chanchal Pal.
This is a touring tracks program. I'm going to provide public performance, broadcast. And Dr. Mani Srinivasan is here, so I'd like to hand him his token of appreciation. No, you've got your name on it. Okay. And then, keeping the theme of folks at the local level, we could not have done anything, believe it, from the negotiations with this hotel, the negotiations about transportation, the negotiations about these mementos that I'm holding. Everything was Dr. Shubham Anand. This next appreciation memento goes out to Dr. Abhinav Jha. Is he here? Dr. Jha? Oh, okay. Fantastic, yeah. Shukar Rustam hai, piche khade hue the. He has been working so hard with Shubham's team from the GAIMS organization. Now, we all have seen Dr. Anjana Samadar working so hard. Behind every successful woman lies a man, right? So I would like to call up on stage Dr. Gautam Samadar. Is he here? Or is he busy making some payments or dealing with somebody else? And we had a couple of very successful events, 2 days of successful events at the All India Institute of Medical Sciences. And thanks, Dr. Srinivas, for lending us an excellent physician who helped us all along the way. May I call upon Dr. Rakesh Garg to be acknowledged. Subscribe twice. .com. I also like to add on Rakesh Garg sir, now 5 years. He is the first Indian in the task force of ACLS in International Liaison Committee. He's the first Indian from India. So we're really, really proud of him. Alrighty, so Dr. Mani Srinivasan has been acknowledged already. Let's not forget Dr. Bhavani Srinivasan. She put together the journal, she put together the Women's Forum. Thank you so much for all your efforts, Dr. Bhavani. This is a tour. Alrighty. The next award is somebody who's already up on the stage and he has been working very hard. And for this, I would like to invite his wife also, who's been standing with him all along, Dr. Sumul Raval.
And we always need good friends who can provide the support in the background without asking for anything else in return. May I call upon Dr. Prabhat Sinha? Now, when I thank Dr. Srinivas for providing us with Dr. Rakesh Garg, he also provided us with Dr. Nishant Sharma. Without the two of them, we would not, I don't know what we would have done. So don't go by his boyish charms. He can get things done. All right, and then there's somebody who has been helping the Samadhas, Gautam and Anjana Samadhar, all along, right from the get-go. Call upon Dr. Ashish Verma to be acknowledged, please. Dr. Ashish Verma. I think वो Dr. Gautam के साथ ही हैं कहीं पे. So Shubham Anand brought a team of volunteers with him from GAIMS, and you saw them working in the background very hard. I would like to acknowledge the contributions by Abhishek Kashyap. We wanted to recognize one of the most important person who helped with this 17th Global Health Summit. That is Dr. Indapal Chabra. This would not have been possible without him. Thank you. Without a doubt, one of the most popular sessions of yesterday was the panel by that one of our people here on the stage set up. And you could see the enthusiasm of the youngsters with that panel. And this is a small little token of appreciation for all of his efforts. Dr. Lokesh Adara. And another person in the team of volunteers that helped out was Saurav Kumar Das. Another one of the volunteers who we would like to acknowledge is Ritesh Bhardwaj. Thank you very much for your patience. Thank you. Time and patience. The dinner will be open now. Are we having the... Why didn't you announce? So we'll be starting the dinner, but to rock the stage at night, we have a very renowned and famous stand-up comedian, Nishant Tanwar, among us. So he will be starting his performance in few minutes.
Meanwhile, dinner will also get opened. Thank you, Nissan. And at this time, I want to thank everybody. I want to also special thank to my sister Smita Ben Joshi for helping us bring Dr. Sen Gupta in very short notice, Deputy Director General and Health Services, and also our guest of honor, Dilip Bhai Sanghani. So thank you, Smita Ben, for your help for our organization. And thank you all the delegates, thank you all the speakers, thank you all the volunteers, thank you all the sponsors, and we will continue to do Global Health Summit better and better every year. So let's enjoy the dinner. Together, welcome on stage the one and only Nishant Tanwar. थैंक यू हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया 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 हो गया सबका खाना वाना सॉर्टेड? हाँ हाँ, पहले एमएमएस बना लो पहले नहीं बना ले वीडियो बना ले पहले। मेरे को वीडियो बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो बनाना बनाओ, मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, उसको अपलोड करो तो कहीं ढंग की वेबसाइट पे करना किसी ऐसी वेबसाइट पे मत कर देना कि रात के 3 बजे मेरा ही खुद को देख के मूड खराब हो जाए, है ना? सही है। कौन कौन है? हु डू वी हैव इन द ऑडियंस? मेरे को पता चला है कि यूएस से बहुत सारे लोग आए, अमेरिका से। कैन यू रेज योर हैंड जो यूएस से आए? ये देखो डॉलर्स, नाइस बढ़िया। और बाकी यहाँ पे यूजी वाले कौन कौन है जो इंडिया से? अभी यूजी वाले, अच्छा ये फ्रंट वाले। अब भी तो अब आगे आओ तुम्हारे भरोसे तो शो करूँगा। आगे आओ, तुम कहाँ वहाँ मिल गए जाके, इधर आओ, आगे आ जाओ। हाँ क्या हुआ? आ जाओ आगे आ जाओ। ये यहाँ पे एमबीबीएस कौन है जो अभी भी यूजी कर रहे हैं? कौन थे यूजी वाले? सही है, एमबीबीएस कर रहे हो सारे? सही है। आप में से कितनों को एमबीबीएस का फुल फॉर्म पता है? नहीं असली वाला। ये देखा, 2 लोग को पता है बस। कितनी रैंक आई थी भाई? हाँ रैंक कितनी आई थी? हाँ पब्लिक नहीं बोल सकते क्या? इतनी बुरी थोड़ी आई थी। अगर एमबीबीएस मिल गया है तो सही आई होगी ना भाई साहब। ये मेरे को पता ही नहीं था। मैं एक बार, हैव यू बीन टू पौंडीचेरी? एनी बीन टू पौंडीचेरी? मैं पौंडीचेरी में शो करने गया था, पब्लिक शो करने गया था। मुझे नहीं पता था पौंडीचेरी में मेडिकल कॉलेजेस है बहुत सारे। मेरे ऑडियंस में सब एमबीबीएस स्टूडेंट्स, सब के सब। वहाँ तक तो ठीक है, मतलब नॉट ऑल एमबीबीएस स्टूडेंट्स, सम अदर ऑल्सो। तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ पता चली जो मुझे पहले पता नहीं थी। यहाँ पे एनिमल लवर है कोई? एनिमल लवर, रेज योर हैंड्स। एनिमल लवर्स या है ना? हाँ, सिर्फ बंदियाँ होती हैं एनिमल लवर्स, है ना? बंदे नहीं होते। बंदे एनिमल लवर तब तक होते हैं जब तक कोई बंदी देख रही होती है कि ओ देखिए, अभी भी देख रही है, ओ जैसे उधर देखिए। तो मुझे एक चीज़ नहीं पता थी, जो मैं असली में जेन्युइनली एनिमल लवर हूँ। मुझे पौंडीचेरी के शो में एक चीज़ पता लगी जो मुझे पता चल के बहुत ही दुख हुआ। दैट वाज कि जो आप नीट का एंट्रेंस देते हो, नीट का एंट्रेंस, जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं उसको एमबीबीएस मिल जाता है ना? उससे कम मार्क्स उसको भी एमबीबीएस, उससे कम मार्क्स फिर भी एमबीबीएस। जिसके सबसे खराब मार्क्स आते हैं उसको वेटनरी मिलता है ये बात कुत्तों को नहीं पता उन्हें जीरो आइडिया है कि उनके तशरीफ में जो इंजेक्शन लगा रहा है उसकी बैक लगी थी। पर अगर मुझे बड़ों के कभी डॉक्टर बनना होता, मैं डेंटिस्ट बनता। कोई डेंटिस्ट है यहाँ पे बाई चांस? डू वी हैव एनी डेंटिस्ट इन द हाउस? एनीबडी? नो? सही। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मुझे अगर बड़ों के डॉक्टर बनना होता मैं डेंटिस्ट बनता। क्योंकि अब चाहे कितने बड़े दूसरे डॉक्टर हो, है ना, इंसान को क्या लगता है कि कार्डियोलॉजिस्ट हो, ऑर्थो हो, है ना, न्यूरोसर्जन, कुछ भी हो, आप जब भी पेशेंट के साथ कंसल्ट करते हो 1-to-1 करते हो, है ना? डेंटिस्ट नहीं। डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाओ, डेंटिस्ट कोने में ऐसा बैठा रहता है, एक पैर ऊपर करके, अजीम ओ शान शहनशाह। उसने 2 लोग रखे हुए हैं अपने साथ। जैसे आप जाओगे तो सबसे पहले आपको पकड़ेंगे, आओ सर जब बैठो बिजनेस क्लास चेयर पे बैठो, मुंह पे लाइट मारो, सर बकरा तैयार है।
और आपने देखा कि सिर्फ डेंटिस्ट में इतना स्वैग है और किसी में नहीं, सिर्फ डेंटिस्ट में इतना स्वैग है कि यहाँ पे डेंटिस्ट खड़ा है, यहाँ पे पेशेंट है, यहाँ पे उसके इक्विपमेंट्स हैं। डेंटिस्ट ने यहाँ से इक्विपमेंट उठा के यहाँ हाथ में देने के लिए एक राजू रखा हुआ है कि अरे ये वाला पकड़ाना ज़रा, ये वाला, ये नहीं, ये जो मैं छू के बता रहा हूँ। मैं डेंटिस्ट के पास गया था, मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था, रूट कनाल हो रहा था, सब सही चल रहा है। अचानक से जो उसका राजू था, असिस्टेंट था, उसका फ़ोन बज गया, कॉल आ गया, वो कॉल अटेंड करने बाहर चला गया। अब डेंटिस्ट खड़ा है यहाँ पे कि यार चाहिए तो यही, खुद कैसे उठा लूँ, और यहाँ पे जनरल जो एनेस्थीसिया दे रखा था, एनेस्थीसिया का असर खत्म हो रहा है, दर्द चालू हो रहा है रूट कनाल का। तो मैं ऐसे कि सर क्या चाहिए, बोला ये वाला, मैं सर ये लो हाँ, मैं एक शो कर रहा था बॉम्बे में, सो देयर वाज दिस डॉक्टर इन द ऑडियंस, आई आस्क्ड हर कि आप कौन सा वाले डॉक्टर हो, एंड शी लाइक पीड्स। मैं ये कौन सा होता है पीड्स? मैंने बोला सारे गामा चेंज करके थोड़ी बोला था, मुझे नहीं पता पीड्स, यू डोंट नो पीड्स, पीड्स पीडियाट्रिशियन। मैं बोला जब बोला नहीं जाता तो किया क्यों, और ये किसने शॉर्ट फॉर्म कौन रखता है पीडियाट्रिशियन का पीड्स? तो ऐसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का क्या हो गया गैस है, और एनेस्थेटिस्ट पे तो मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ पर स्पेशली जो फर्स्ट ईयर वाले फिर से हाथ खड़े करना, फर्स्ट ईयर वाले कौन कौन है? फर्स्ट ईयर भाई साहब, इनके जितना खुश कोई नहीं होता। इनका जब एमबीबीएस में एडमिशन होता है ना, ये होता है एमबीबीएस करेंगे, एडमिशन के बाद पता चलता है एमबीबीएस नहीं कर रहा है। और आप तो सब डॉक्टर हो तो आपको ऑलरेडी पता ही है ये। फर्स्ट ईयर में एक चीज़ होती है बोन सेट, है ना। बोन सेट होता है दो तरह के, एक होता है सिरामिक पूरा, है ना, पर उसमें मज़ा नहीं आता कि नहीं सिरामिक में ना वो फील नहीं है। दूसरे वाला होता है असली का, कि वो भी कभी यहाँ ऐसे खड़े होकर कभी कहीं कॉमेडी कर रहा होगा, वो वाला। तो मेरी फ्रेंड थी फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में, उसके पास था बोन सेट असली वाला। तो छुट्टी हुई तो बोले मैं घर चली जाती हूँ, तो फर्स्ट ईयर में तो लिटरली आप बोन सेट के साथ रहते ही हो, बोले अपना बोन सेट साथ ले चलती हूँ, घर पे पढ़ लूँगी। उसने बोन सेट डाल के बैग में चेक इन करा दिया। अब वो प्लेन में बैठी है कि आधा घंटा हो गया, फ्लाइट उड़ क्यों नहीं रही है। आधे घंटे बाद उसका नाम अनाउंस हुआ कि मैडम आप प्लीज़ बाहर आ सकते हैं। हो गई बाहर, जैसे ही देखा तो उसका बैग रखा है, यहाँ 3 कुत्ते खड़े, 3 पुलिस वाले हैं और 4 सीआरपीएफ वाले। जैसे गई बोले मैम ये बैग आपका है? हाँ मेरा है। बोले बाकी की बॉडी कहाँ छुपाई है पर स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता है, कई कई बार ना लोग ऐसे ऑफेंड हो जाते हैं कि ऐसे बोलते बोलते। मेरी एक फ्रेंड है, वो स्टैंड अप कॉमेडी करती है, स्टैंड अप कॉमेडी कर रही थी और ऑडियंस में एक रेडियोलॉजिस्ट था। उसने पूछ लिया ऐसे कि आप क्या हो, उसने बोला रेडियोलॉजिस्ट। उसने फ्लो में बोल दिया कि रेडियोलॉजिस्ट आर ग्लोरीफाइड फोटोग्राफर्स। मैंने नहीं, उसने बोला, मैंने नहीं। उसके बाद भाई साहब ऑफ कोर्स ये बोलने वाली बात थोड़ी थी, पर सिविलियंस को पता ही नहीं कि रेडियोलॉजिस्ट नीट पीजी में सबसे हाईएस्ट रैंक को मिलता है, ये पता ही नहीं हमें। कैसे पता चलेगा? हमारा जो एक्सपीरियंस है वो क्या रहता है। मैं जब पहली बार लाइफ में अल्ट्रासाउंड कराने गया, लाइफ में पहली बार, जैसे ही गया वहाँ पे एक दीदी खड़ी थी, जैसे गया मेरे को बोलती है टी शर्ट ऊपर कर लो। मैं बोला 2 मिनट बात तो कर। बोलते नहीं टी शर्ट ऊपर करो, टी शर्ट ऊपर करो। मैं ठीक है टी शर्ट ऊपर कर ली। टी शर्ट तो फिर भी मैंने खुद ऊपर करी। दीदी ने साइड से पेपर नैपकिन फाड़ा, मेरी पैंट पकड़ ली, धीरे धीरे पैंट नीचे करी। मेरे धक धक हो रही है कि पता नहीं पैंट कहाँ जाकर रुकेगी। भाई साहब एकदम एलओसी पे जाके ना हल्का सा ऊपर ना हल्का सा नीचे, पैंट नीचे। मैं पता नहीं क्या भाई साहब, ये सब हो गया। उसके बाद अपने असिस्टेंट को देख के बोलती है जेल लाओ। अब मैंने देख रखा है जेल की बोतल इतनी सी होती होगी, है ना भाई साहब, इतनी बड़ी जेल की बोतल, ऐसे जेल लिया, पूरा ऐसे जेल वेल ही करती है। मैं भाई साहब इतना सारा जेल। फिर उनसे वो असिस्टेंट से एक वो मंगाया कुछ तो प्लास्टिक का कि इससे टच करके देखेंगे। मैं ठीक है। और जिस चीज़ पे लेटाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, है ना, वो चीज़ रैक्जीन की भी हो सकती थी, रैक्जीन नहीं तो गद्दे की, लकड़ी की, ना एकदम बर्फ़ की सिल्ली की तरह ठंडा, इतना ठंडा। लेटते मेरा एक बाल खड़ा है, उस पर लटा के यहाँ वैसे छूने लगा, यहाँ पे ऐसे टच किया। बोली आपने पानी नहीं पिया ना? मैं बचपन से पी रहा हूँ। ब्लैडर फुल नहीं है आपका। फिर बोले जाओ पानी पी के आओ। ऐसे गुस्सा होकर पानी पी के आओ। छोटा सा पेपर नैपकिन फाड़ के दिया कि साफ कर लो। मैं दीदी आपने जो 1.5 बाल्टी जेल लगाया है, मैं इसमें टॉवल लगेगा मैं ये पेपर नैपकिन तो यहाँ छाती में फंस जाएगा मेरे। इतना साफ किया, यहाँ पहुँचते पेपर नैपकिन गायब। टी शर्ट नीचे की बाहर निकला तो टी शर्ट चिपकी हुई छाती से। दूसरे पेशेंट सोच रहे पता नहीं क्या करके अंदर। तो ऐसे कैसे तुम इसको कैसे सीरियसली लो? इसलिए एजुकेट करो सिविलियंस को कि नहीं। पर जो मेरे दूसरे फेवरेट हैं, यहाँ पे कोई एनेस्थेटिस्ट है बाई चांस? एनेस्थेटिस्ट है?
कौन एनेस्थीसिया वाले कहाँ हैं? हाँ भाई साहब, ओहो, ये मेरे फेवरेट हैं। डेंटिस्ट के पास जो मेरा फेवरेट है वो ये, एनेस्थीसिया वो लोग लेते हैं जिनको करना होता है जीरो व्यवहार, कि हमें करनी सबसे कम बात, मिनिमम बात में कौन सा है ना। ये लोग जानबूझ के ना सर्जन से ज़्यादा बात नहीं करते। सर्जन बेचारे अपने लगे होते हैं कि अरे 5 नंबर का पाना देना, अरे यार ये एनेस्थेटिस्ट वहाँ कोने में अपने लगे होते हैं कि हाँ हो गया क्या, अच्छा नहीं नहीं बस मेरा अगला लेवल और ये चल रहा है। मेरे को इन्होंने अगर एक्स्ट्रा बात कर ली ना सर्जन से, तो सर्जन के तो हाथ गंदे होते हैं, या थोड़ी खुजली करते हैं यहाँ पे, तू तो कुछ कर नहीं रहा। मेरी सर्जरी हुई थी लास्ट ईयर, पूरे हॉस्पिटल को पता था 10 दिन पहले से मेरी सर्जरी हो रही है ना। डॉक्टर को पता था, नर्स को पता था, नीचे चाय वाले तक को पता था। 10 दिन थे उनके पास, कुछ नहीं बोला। जिस दिन मेरी सर्जरी थी, कपड़े वपड़े चेंज करते, हरा सा पहना दिया, स्ट्रेचर पे लेटा के फोन वोन ले लिए, अंदर एकदम ओटी में। जैसे ही ओटी में एंटर करने लगे, उससे पहले आया एक बंदा एनेस्थीसिया वाला, A4 साइज का एक प्रिंट आउट लेके, बोला सर इस पर साइन कर दो। मैं ये क्या है, क्या लिखा है इसमें? बोला सर इसमें लिखा है कि अगर आपकी सर्जरी में अगर बाय चांस कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बोला अब मेरे पास ना फ़ोन है, ये 10 दिन पहले क्यों नहीं बताया है? अब क्या बोले, इसको कंसेंट फॉर्म बोलते हैं, मैं इसको सुसाइड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो बोला अब इस पर साइन कर दो। भाई साहब एनेस्थीसिया जितने वाले कोई मजे कोई नहीं लेता। बट गाइज कोरोना इज बैक। आपसे ज़्यादा किसको ही पता होगा ये बात, कोरोना इज बैक। कोरोना कहीं गया भी था क्या? कहीं गया था? ये जो वेरिएंट है ये कौन सा है, पता है किसी को? JN1 है ना। ये नाम कौन रखता है ये? हाँ, ये इसका नाम JN1 पता है क्यों है? हाँ हाँ 1 जनवरी ये आया है, 10, 9, 8 हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, पर आपको याद है 2020 में जब कोरोना आया था, डू रिमेंबर? मार्च 2020 में जब स्टार्ट हुआ था, ऐसे सुनने में आया था कि अमेरिका में कुछ हो रहा है, चाइना में कुछ हो रहा है, यूके में कुछ हो रहा है। मैं बोला अपने यहाँ तो इंडिया में हर चीज़ सारी 6 महीने बाद आती है, हमारे थोड़ी आएगा। 4 दिन बाद ही आ गया कोरोना। और शुरू में जब कोरोना आया तो किसी को सिम्टम्स नहीं पता थे, एकदम नई बीमारी थी, किसी को नहीं पता था सिम्टम्स क्या है। सर्दी है तो भी हो सकता है, खांसी है तो भी हो सकता है, बुखार है तो भी हो सकता है, मूड खराब है तो भी हो सकता है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा तो भी हो सकता है। मैं हमारे घर में तो वैसे ही खाने में टेस्ट नहीं आता। हफ्ते में दिन होते हैं 7, मेरे घर में लौकी बनती 10 बार। मेरे सब्जी वाले को लेजिट लगता है कि हम उससे सस्ते में लौकी खरीद के कहीं महंगे में बेच रहे हैं। जैसे सिम्टम नहीं पता थे, ऐसे इलाज भी नहीं था। वैक्सीनेशन तो बहुत बाद में आया, किसी को पता ही नहीं था कि क्या इलाज क्या है। तो मेरे घर में मेरी मम्मी का बहुत ही सॉर्टेड है ना, कि चाहे सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, कैंसर, एड्स, कोरोना, सबके लिए हल्दी का दूध। जैसे ही फर्स्ट वेव आई, मेरी मम्मी ने दे हल्दी का दूध, हल्दी की दही, हल्दी की सब्जी, हल्दी की रोटी, हल्दी का पानी। मुझे इतनी हल्दी खिलाई है, इतनी हल्दी खिलाई है कि फर्स्ट वेव के बाद जब मैं डेंटिस्ट के पास गया हूँ तो डेंटिस्ट मेरे दांत देके बोलता सर ये तो येलो का कोई नया शेड है। ब्रश किससे करते हो? मैं हल्दी से। ओहो, पर दोस्तों मैंने कोरोना में जो हाथ धोए हैं, मैं जिंदगी भर के हाथ धो लिए, है ना। और मेरा तो डिटॉल विटॉल से भी विश्वास उड़ गया था। मैंने हाथ धोए एसिड से कि चमड़ी जले तो जले, कोरोना नहीं होना चाहिए। ऐसे हमें कुछ ना कुछ सबको फोबिया हो गया था ना कोरोना के टाइम। मेरे पापा ने क्या किया, कोलिन, पता आपको कोलिन क्लीनर था, कोलिन। मेरे पापा ने कोलिन लिया, अपने पजामे का नाड़ा निकाला, उसको एक साइड और जैसे दोनों साइड कोलिन के बांध दिया, और कोलिन को ऐसे स्लिंग बैग की तरह लटका के घर में घूमते थे। आप सोचो एक इंसान घर में लुंगी और बनियान में कोलिन लटका के घूम रहा है। मैं देखता था मैं इससे अच्छा तो मुझे कोरोना हो जाए। और कोलिन लटका के घूमते थे। जैसे दरवाजा खोल के सब्जी आई उस पर कोलिन मार दी, मसाला है उस पर कोलिन मार दी, खाना ऑर्डर किया उस पर कोलिन मार दी। हम घर में घुसते थे, हम पे कोलिन मार देते थे। तो फर्स्ट वेव में हम में से किसी को कोरोना तो नहीं हुआ, पर हम सब ने 1.5 लीटर कोलिन तो पी है। अभी भी हमारे बॉडी में इतनी कोलिन है कि हम घर में घूम रहे होते हैं, देखते ना, अरे टीवी पे दाग लगा है, आछू। पर फिर अचानक से ऐसे न्यूज आई कि लॉकडाउन लगेगा। रिमेंबर लॉकडाउन? इससे पहले हमने लाइफ में कभी लॉकडाउन सुना ही नहीं था क्या होता है। जो क्लोजेस्ट टू लॉकडाउन हमने सुना था वो था बिग बॉस। कि एक घर में ऐसे लोगों को बंद कर देते फिर वो मर जाते हैं, आत्मा तो मरी जाती है उनकी। तो मैं मम्मी को न्यूज़पेपर पढ़ के सुना था कि मम्मी कल से ना लॉकडाउन है, कल से स्विमिंग पूल बंद है, शॉपिंग मॉल बंद है, स्कूल बंद है। मम्मी बोली हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं सही बोलो क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने लास्ट लाइन पढ़ के बताया कि मम्मी कल से ना डोमेस्टिक हेल्प नहीं आएगी। मम्मी फिर से बोला लास्ट वाला, मैं मम्मी कल से काम वाली दीदी नहीं आएगी। इस खबर पे हम सब घर वाले मिलकर जो अपनी चूड़ियाँ तोड़ी हैं। आपको याद है वो दिन जब काम वाली दीदी आना बंद हो गई थी, डोमेस्टिक हेल्प?
कोरोना ने और कुछ किया ना हो, एक चीज़ जो अच्छी की थी, हम सबको अपनी डोमेस्टिक वैल्यू की वर्थ रियलाइज करा दी थी। मेरे को अभी भी याद है, कोरोना से पहले जब हमारी काम वाली दीदी आती थी, बर्तन मांज रही होती थी, मम्मी साइड में खड़ी हो जाती थी उसके, जैसे वो बेचारी प्लेट साफ करके यहाँ रखती, मम्मी ऐसे ISO सर्टिफाइड नेक्स्ट, ISO सर्टिफाइड नेक्स्ट, ऐसे एक एक करके, और बेचारी जैसे ही पूरे बर्तन मांज के साफ करके हटती थी, मम्मी बीच में से एक प्लेट निकाल लेती थी, ये देख इस पे सब्जी लगी हुई है अभी भी। लॉकडाउन के बीच में ऐसे मैंने एक प्लेट निकाल के मम्मी को दिखा दी, मम्मी देखो इस पे सब्जी लगी हुई है, रोटी लगा के खा ले। पर ये सब तो हंसी मजाक की बात है, पर कोरोना में हम सबका कोई ना कोई जानकार, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई दोस्त ऐसा था जिसने लूडो खेलना स्टार्ट कर दिया। है ना, ये बहुत हुआ है कोरोना में, है ना। अच्छा, तो जब लॉकडाउन खुल गया, ट्रैवल स्टार्ट हो गया, तो अब जब कोरोना में लॉकडाउन के बाद जब जाते थे बाहर, तो एयरपोर्ट पे आपके फ़ोन में 2 चीज़ चेक करते थे, याद है? एक तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटो और दूसरी डोलगोना कॉफ़ी की, है ना। किस किसने बनाई डोलगोना कॉफ़ी, है ना। कितने वेले थे हम, कितने वेले थे, इतने सालों से कॉफ़ी पी रहे हैं कि इस बार पहले पानी डाल देते, फिर कॉफ़ी, फिर दूध, इस बार पहले दूध कॉफ़ी। मैंने सारे कॉम्बिनेशन कर लिए, एंड में ना मैं मुंह खोल के पहले दूध, कॉफ़ी, चीनी, ओहो। पर यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें फर्स्ट वेव में कोरोना हुआ था? लास्ट जब फर्स्ट वेव आई थी, रेज योर हैंड्स, फर्स्ट वेव वाले, ऐसा कोई जिसको फर्स्ट वेव में हुआ था? फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में किसको हुआ था? सेकंड वेव, थर्ड वेव में, और किसको अभी भी है? अरे घर की बात है। ऐसा कौन है जिन्हें हुआ ही नहीं? हुआ ही नहीं दोस्त, क्या नाम है? हाँ, आकाश। तो ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, फिर तो अपना सोशल सर्कल चेक कर। जिसको कोरोना हुआ ही नहीं, घर से बाहर निकलो, थोड़ा व्यवहार करो। है ना, कोरोना वोरोना नहीं हो, तुम नस काटोगे एक दिन, मिलो लोगों से। कोई मेरे को फर्स्ट वे में नहीं हुआ, सेकेंड वे में नहीं हुआ, थर्ड वे में मेरे को हल्की सी खांसी, हल्का सा बुखार, हल्का सा जुकाम हुआ, तो बोला टेस्ट करा लेते हैं। मैंने टेस्ट बुक करा दिया, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया में कोरोना से भी ज़्यादा बुरी चीज़ कोई है तो वो है RT-PCR टेस्ट। भाई साहब, बंदा घर पे आ गया, पूरा कवर्ड, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कवर्ड, पूरा का पूरा कवर्ड, जैसे नासा का स्पेस सूट पहन रखा हो, पूरा कवर्ड, एकदम हवा नहीं जा सकती, पूरा कवर्ड। बोला भाई तेरे कोरोना नहीं होगा, तू ना दम घुट के मरेगा। पूरा कवर्ड ऐसे। उसने आया, अपना बैग वैग निकाला, उसमें से सामान निकाला, उसने निकाला एक भाला निकाल के मेरी तरफ देख के बोलता छेद दिखाओ। मैं ये लो, अरे बोला ये नहीं। मुझे क्या पता कौन सा, बचपन से सारी पैनी और नोकीली चीज़ें कहाँ लगी हैं। बोला नहीं, इसमें ना हम नाक से लेते हैं सैंपल। मैं ठीक है, योर भाला योर कॉल। भाई उसने भाला लिया और मेरे नाक में डालना शुरू किया। मैं इस पॉइंट पे बता दूं दोस्त, मुझे ना साइनसाइटिस है, यहाँ से मक्खी निकल जाती है, मेरे को छींक आ जाती है। वो भाई साहब ने भाला यहाँ पे दे दिया। मैं भैया जो ढूंढ रहे हो मिल गया क्या? बोले नहीं अभी नहीं मिला। मैं ठीक है, थोड़ा सा और अंदर। मैं भैया ढूंढ रहा हूँ, मिल गया? नहीं, थोड़ा सा और। यहाँ तक भाला डाल दिया। मतलब भैया इतना अंदर तो आज तक मैं नहीं गया हूँ, यहाँ तक। उसने मजाक में यहाँ तक डाल दिया, यहाँ। मतलब भैया अगर यहीं तक डालना था तो आँख से घुसेड़ता, पास पड़ता हूँ। मेरे को लगा कि अब तो टी पॉइंट आ गया, अब तो निकाल लेगा वापस। नहीं भाई साहब, फिर उसने शुरू किया घुमाना। मैं भैया ड्रिल करके तेल निकालोगे क्या? उसने सैंपल निकाला है मेरी आत्मा से, ऐसे निकाला, भाला साइड में रखा। मैं चलो भगवान को हाथ जोड़े कि ये मुश्किल की घड़ी किसी न किसी निकल गई, कुछ नहीं बच गए। तभी उसने उठाया एक और भाला। मैं भैया ये किस लिए? बोला दूसरी नाक में। मैं सुन, मुझे है नहीं चाहिए मुझे नेगेटिव रिपोर्ट। इसका क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस मुझे फिर से 1 महीने पहले हुआ। बॉम्बे में मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के पास है हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, आपने सुना होगा। मैं हॉस्पिटल में गया, मेरे को पेट में कुछ जलन सी हो रही थी, तो मैं गया। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला ये गैस्ट्रो का केस है, यहाँ नहीं गैस्ट्रो के पास जाओ। मैं गैस्ट्रो के पास गया कि जलन हो रही है। बोले हाँ वो आपके पेट में एसिड। मैं एसिड पेट में? मैं तो हाथ में लगाया था। बोले नहीं ये दूसरा है पेट वाला। मैं अच्छा। बोले वो पेट में देखना पड़ेगा। मैं देख लो। बोले ऐसे नहीं, एक पाइप में कैमरा लगा के। मैं MMS बनाओगे? बोले हाँ। तो बोले इसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। मैं नाम से क्या फर्क पड़ता है, जब आप कैमरा डाल ही दो। आप इसको चाहे राकेश बोलो, करोगे तो वही। तो बोला एंडोस्कोपी ऐसे करके कैमरा डालने लगा, यहाँ तक डाला। मैं भैया जो ढूंढ रहे मिल गया? बोले नहीं अभी नहीं। मैं अब भैया मिल गया नहीं। धीरे धीरे यहाँ तक डाल दी पाइप, यहाँ तक। मैं भैया अगर यहीं तक डालनी थी। थैंक यू सो मच, अमेजिंग, थैंक यू। The inauguration will take place. That's the Shubha Din, immediately after Shankrant, Shankrant
happens on 15th of January, and after that, all these auspicious events take place. So this is on the 22nd of January. If anybody would like to attend, then these are the gentlemen whom you need to contact, because there's a tight list and there's a lot of security, as you might imagine, in that area. So everybody, you know, if they would like to attend that August ceremony, please give your name and your details to them, so you know they can get you on a preferred list. Am I right? And the name is Dr. Vijay Tiwari, all right, and Mr. Sensei Raj. So did you want to say something, Mr. Raj? Yeah. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, thank you for coming out here from the US. Although I live in DC, I still welcome you to India. Number two, as a part of the Vision India 2032 movement, which is a capacity development movement, I heartily congratulate you for standing up for what we see behind us. And this is, I think, the tip of the iceberg from the work that is ahead of us. And let it begin with a historical moment, that is the inaugural ceremony of Ram Mandir, which is on 22nd. I am not a religious person, but I am Sanatani and a proud Hindu. I think yesterday your past president said it very eloquently, and that's what we need to be proud of. If you're not proud about our own civilization and the roots where we come from, what are we? So in that note, I heartily welcome you folks to and urge you to send your profiles to Dr. Bhavani here, and she will forward it to me, and we will send a list for the approval ASAP, and that needs to happen very quickly in the next day or two. So before you catch your flight, sorry, not the next day or two, but immediately, that means ASAP, as we say. And for that, thank you, and I hand the mic back over to Dr. Bhavani. Thank you. So if you're keen on attending, please, you know what to do. Thank you. We are presenting the award for Best State Chapter for Global Association of Indian Medical Students, and it goes to West Bengal. For helping us organizing the 17th Global Health Summit. And I promise you, I didn't know that West Bengal was getting it, even though I'm from West Bengal. So I'm proud to say that GAIMS West Bengal is the most vibrant team of the medical students in India. Smilingly, even though we yelled at him a lot, and I made him wake up, I don't know how many times at 1 a.m. Yeah. So, yes, of course. And with publishing, souvenir, whatever the problem of the day. So the special award goes to Shubham Anand. Yeah, I think you'll put it to good use. Enjoy. All the best. Thank you, Shubham.